And first instance that happened with Birsa Munda encounter with this kind of movement, that was fighting against this feudalism, feudal character of the society. Chairperson and of this important gathering, Professor Sona Jharia Minj and Nitisha Khalko, panelist, and this Professor Y. Chinna Rao, who is moderating, chairing this important gathering, and Biswajit Minj, Preeti Patil, who is, was moderating, Abhijit, Raghav, Indrajit, Ajiyanka, I think. So these people, right. So these people has done a commendable job by, organizing this beautiful evening on this auspicious day of celebrating 148 birth anniversary of our freedom fighter, social reformer and liberator of this entire humanity. I am not using restricted to a specific community or a specific society. And this is a very, in fact, you can say after 30 years I am coming to, speaking here after when I was a student, and this is a very, I can say again repetition of history. Once upon a time, chairperson who is chairing now, he was chairing he was the chairperson, and I was a student. I was contesting the election. So this is a second, you can say, important event. So this is again, I am going back to, you can say, more than 30 years of my history, what I was doing during my student days. And I can guess the audience, the way they are here, and most of the you can say entire environment of JNU is changed now, and it is, I can say, it is a reflection of outside. So we are helpless also. The way things were happening in 96, 97, 90, 92, 93. And here we are celebrating, in fact, very important revolutionary Birsa Munda ji, 148 birth anniversary, and nothing is left after when, you can say, a professor, distinguished professor like Sona Jharia has already covered most of the aspect related to this entire development in this time. But there are certain issues certainly I will point out, and Bahujan discourse is we cannot complete within 15 minutes, 10 minutes or half an hour. This is a very, a very huge area. So when we are discussing about his contribution, his services to the nation in 25 years of his life, so I found, in fact, most of the writing. So the writer very cleverly has put in this word, he was a revolution. He fought against the British rule. Why against the only British rule? And no one is ready to accept the ground reality, the existing ground reality, how the landlords, feudal landlords were discriminating against this particular society. That was the case. And first instance that happened with Birsa Munda encounter with this kind of movement, that was fighting against this feudalism, feudal character of the society. That we have to take into it out. So one side, he was a nationalistic hero, other side he was trying to unite the society, trying to mobilize the society, not only his own community. When in 1919, in fact, this Munda Council was formed. So the first revolution which was passed in 1999 to unite entire tribal society, not one society. So it was a message of unity. How Birsa Munda was trying to unite the entire society against the social discrimination, against the caste discrimination, against the suppression and oppression of the landlords in this region. So this and another important dimension that, in fact, this movement, what I would like to just
mention here, and I will extend. In fact, let me go back even before Birsa Munda, and perhaps most of the student, if not aware, they should read the text. 1769 Bengal movement. There was a massive protest movement against this feudal landlord, against the oppression in this Bengal presidency in those days. And the only one line demand was that we have heard that the British government is going to conduct the census in coming future. So, and that census was conducted in 1871. That was the first census conducted by the British government in India. So what was their demand? The demand was our enumeration should not be along with the Hindus. We are not a Hindu, we are not part of the Hindu society. That was the first reaction expressed by the Namo Shudra community, sir. So Namo Shudra community's demand was accepted by the Britishers, and they were enumerated separately. So from the very beginning, when we are debating on this issue, we have to draw a line. Who is my friend, who is my enemy? Then debate will be very clear, then debate will be it will be sharpened, and our fight will be very, you can say sharpened to identify कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन. और उस समय 1871 के सेंसस में जो इन्यूमरेशन में लिखा गया, what was that? That is a very, you can say, painful word they use, Namo Shudra / Chandal. That was mentioned in 1871 census. अब उसके बाद चलिए, against the Namo Shudra community held a demonstration in front of census commissioner, and census commissioner tender apology. This was mistake done by our supporting staff. I tender apology. It should not be repeat again, and it should be removed. And that was in next census. It was this Chandal word was removed. So, in my opinion, just let me give another example, sir. In those days, entire Bangladesh was a part of Bengal presidency, and Bengal presidency, what was the percentage of the population at present day Bangladesh? So 74% untouchable population was there in present day Dhaka. Mehmednagar 74% and 62%. Karimnagar 73%, and other district 73, 74, 75. Everywhere there was a resistance against the internal exploitation, against the social oppression. It was not against the British. I will come little later. So that's Bangladesh. Now Bangladesh, that is another debate. I will certainly try to touch upon if time permits. The division of Bangladesh, how Bangladesh was divided, this Bengal was divided, because historians are also there, social scientists are also there. So I should not put myself into trouble, but at least there is a need to rewrite and redefine this history again and again. And my humble suggestion to everyone, to read and think about the history. Researchers should try to find out what is the contribution made by this society, indigenous society I am talking about. So most of the history, the way it is distorted, the way it is written, and historian, I cannot expect them to do the justice with the marginalized society. I mean Bahujan society. We are today discussing about the Bahujan discourse. Bahujan discourse, it is because of the contribution made by Birsa Munda ji. It is a contribution because made by other social revolutionary. Second important dimension, which I am trying to just collect from other sources. जो हिस्टोरी हमारे लेखक भी हैं, बड़े चालाकी से लिखते हैं. चिन्नाराव कहाँ से है? तो आंध्रा से. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदि आंध्र आंदोलन पे. मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उत्तर प्रदेश से मैं पढ़ूं कि आदि धर्म क्या था. और कोई बंगाल का होगा तो बंगाल. वी आर आल्सो डिवाइडेड हाउस. और हम भी इतिहास उसी ढंग से पढ़ते हैं जितने से मेरा काम चल जाए. जो दिखता है वही बिकता. ये दिखता बिकता छोड़िए.
Everybody has to come at one platform. Everybody has to think about the history. Why only Chinna Rao will study early Adi Ravidu movement? Why not Rana is studying? Why not Rana is trying to bring everything at every movement at one platform? Why Kerala movement is left behind? हम समझ सकते हैं उस समय कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट था, और आज तो हम इतनी अंग्रेजी भी समझ लेते हैं कि तमिलनाडु को पढ़ सकते हैं। आज हम इतनी अंग्रेजी समझ लेते हैं कि केरला को पढ़ सकते हैं। आज हम इतनी अंग्रेजी समझ लेते हैं कि आंध्रा को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग भी जो होते हैं, वी आर सेक्टेरियन पीपुल, वी डोंट वांट टू रीच टू दैट एरिया। एकेडमीज में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग बार बार कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन, कब का कंट्रीब्यूशन? एक ही आदमी का कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में नहीं हो सकता। कौन कौन से लोग हैं? ईच एंड एवरी स्टेट हैज गिवन, यू कैन से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड सोशल रिवोल्यूशनरी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बड़े दावे के साथ कहता हूं। अब आप उसके बाद आ जाइए 1871 की जो सेंसस है, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। यू ऑल शुड रीड वेरी केयरफुल्ली। इन 1871 सेंसस में उस समय भी आया है बंगाल प्रेसिडेंसी में 776 पीपल वर पोस्ट ग्रेजुएट इन दोज डेज बंगाल प्रेसिडेंसी में। सर ये कहां, ये आना चाहिए कि इतिहास कब रहा? तब तो हमारे आज के जो दिखता है बिकता वो लोग नहीं थे। और बार बार मैं इस बात को कहता हूं, जब 1871 की हिस्ट्री की मैं रेफर कर रहा हूं तो मोस्ट लाइकली मेरे बिरसा मुंडा जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज मूवमेंट एंड ही टुक द लीड एंड ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ इन 25 इयर्स ऑफ एज। मुझे डेट ऑफ बर्थ में कुछ हो सकता है, जब मेरी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है तो उस जमाने में डेट ऑफ बर्थ किसकी क्लियर हो सकती, उसमें हम लोगों को कंट्रोवर्सी हो सकती। दैट इज नॉट अ इशू, बिग इशू। लेकिन उनके फिलॉसफी में जो हो रही है कि जो कहते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट का जो हो रहा है, कि जो शासक वर्ग है, जो चाहे ब्रिटिश हुकूमत हो चाहे आज की हुकूमत है, वो कहते हैं कि ट्राइबल्स राइट्स ऑन फॉरेस्ट लैंड, जो कहते हैं कि उनके एरिया में जो जुरिडिक्शन में any outside rule or any government rule should not be imposed on them. They should not encroach upon their culture. They should not destroy their history. उसमें कहते हैं कि जैसे मैं अभी मैडम जी एक वो कर रहा हूं कि पनामा सिटी का प्रेसिडेंट भी पनामा का वो परमिशन लेगा कि ट्राइबल एरिया में मैं जो है जाना है तो मुझे उस ट्राइबल ग्रुप से परमिशन लेना है। तो इस तरह के ट्राइबल कम्युनिटीज का इंडिजिनियस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है कि जो उनको जो है उनके नैसर्गिक अधिकार दिए जाने चाहिए, वो कब मिलेगा? और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जबकि या आर्गू करता हूं या कुछ एक अभी बड़ी फनी चीजें का आपको दे रहा हूं थोड़ा सा। कभी मुझे बुलाया गया था काशी विद्यापीठ बनारस में, तो बोलने के लिए क्या था, current situation in West Asia with special reference to Hamas and Israel conflict. Even faculty members were more interested to listen from me कि राणा साहब कह देंगे कि हमास एक आतंकवादी संगठन, उनको बस इतना इंटरेस्ट है। Nobody is interested to go into detail what is the problem there. खैर वो इशू डिफरेंट है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। अब जब मैं एक चीज इसको डिबेट कर रहा हूं 1871 से, कभी भी दूसरा जो आप पढ़िए ईस्टर्न बंगाल एंड असम एक्ट 1908, ईस्टर्न बंगाल एंड असम एक्ट 1908, proportional representation were given to the community, and when it was withdrawn, that is a big question, and that you have to study very carefully. Before independence there was no struggle for reservation. रिजर्वेशन है बात की, कुछ लोगों ने जो समझौता किया, समझौता करके आपस में बांट लो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की प्री इंडिपेंडेंस फाइट जो रही है, स्ट्रगल रही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू द कम्युनिटी, दैट वाज द स्पिरिट ऑफ आवर मूवमेंट। और सर एक और भी है
बंगाल पार्टीशन वोटिशन की आप लोग बात जानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्या कि मुसलमानों का कम्युनलिज्म हो गया था, बड़े कम्युनलाइज हो गए थे, बांट दो बंगाल। यही बड़े बड़े हिस्टोरियन जो कभी एनबीटी के चेयरमैन हो जाते हैं, कभी कहीं के चेयरमैन हो जाते हैं, वो लोग लिख डाले हैं, उनसे भी इंटरेक्शन हम लोगों का होता है। अब तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन उस समय इस चीज को ढूंढने की जरूरत है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो ये अप्रेस क्लास का जो एक जो यूनिटी थी, एकता जो थी, that was a big challenge to the Hindus. When I am using the term Hindus, means 10% only Brahman, Baniya or Thakur, except that no one is Hindu, either आदिवासीज और आज के शेड्यूल कास्ट की बेकार की चीजें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट लेने के लिए नाम लिख लीजिए। लेकिन मैं तो कहता हूं अनटचेबल कहे ये लोग तो ज्यादा बेहतर है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड टू रिएक्ट टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडरिटी। शेड्यूल कास्ट की बेकार की चीज है, कुछ तुम ले लो, कुछ तुम ले लो, कुछ तुम ले लो, कुछ थोड़ा तुम खुश हो जाओ, थोड़ा तुम खुश हो जाओ। वो कहते हैं चॉकलेट बांटने वाले धंधे, वो चीजें नहीं चलेगी। पर आना है तो आपको, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट नारा लगाते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बड़ा अच्छा नारा, लेकिन वहां एक और भी जोड़ लीजिए, इट इज बेटर टू बिकम हेड ऑफ द कैट रादर देन बिकमिंग टेल ऑफ द लायन। वंस यू आर बिकमिंग हेड ऑफ द कैट, इन साइज यू कैन से कैट इज अ वेरी स्मॉल, but she is very clever and she keep on protecting herself or himself, very alert, and become head of the cat rather than becoming tail of the lion। तो tail of the lion क्या हो सकता है? लंबी पूंछ हो सकती है शेर की, लेकिन कभी ताकतवर नहीं हो सकती। ये भी कांसीराम का ही है। और मैं बार बार ये जो आ रहा है एक डिबेट, कि उसमें जो बहुजन डिस्कोर्स में भी आना चाहिए ना, कि बंगाल बटा क्यों सर? बंगाल बटने के पीछे, ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप स्टडी करिए, खोजिए, हिस्टोरियन के तौर पे आप लोग हिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं कि 1906 का जो बंगाल बंटवारा है सर ना, 1906 के बंगाल के बंटवारे में 5 अच्छा जो भी होगा, डेट वेट एक आध साल आगे पीछे मुझसे भी हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। तो जो बंटवारे के पीछे जो अवेयरनेस को कैसे तोड़ना है, जो वहां पर जो मुस्लिम और अनटचेबल कम्युनिटी की जो यूनिटी थी अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, और उसमें जो बैठकें हुई हैं सर, लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठकों को आप देखिए, जिसकी एक बैठक की ग्रुप की जो है, जो अध्यक्षता किया महाराजा बर्दवान ने किया है, और दूसरे ग्रुप की जो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर नूरुल अमीन कर रहे हैं। और नूरुल अमीन के पास जो लेजिस्लेटिव मेंबर जो उनके थे, उसमें मेजॉरिटी मैक्सिमम 2/3 मेजॉरिटी वर इन सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड बंगाल, देयर शुड नॉट बी डिवीजन। और जो महाराजा बर्दवान के थे, उनके माइनॉरिटी मतलब 1/3 भी उनके पास नहीं थे। और उस समय मैं कहूंगा कि आज के जो नेशनलिस्ट लोग थे, वो यही चाहते थे कि बंगाल बटेगा नहीं तो हमारा राज कैसे होगा, इसलिए बंगाल बांटा गया। कम्युनलिज्म कोई इशू नहीं, आज भी मेरे लिए कम्युनलिज्म कोई इशू नहीं, इवन जबकि इंटायर नेशन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और जब उसको बांटा गया, जब महाराजा बर्दवान की जो टीम रही है जो यूनाइटेड बंगाल में, उसमें मैडम 4 अनटचेबल भी मेंबर रहे जिन्होंने वोटिंग किया है कि वी वांट यूनाइटेड बंगाल, बंगाल शुड बी एज इट इज, इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। और जो बंगाल बंटवारे के बाद जो आज वो देख रहे हैं बांग्लादेश, वही हिस्सा, उनका मतलब क्या था? मतलब यही था साफ साफ कि अगर बंगाल यूनाइटेड हुआ तो हो सकता हम प्रधानमंत्री न बन पाए, जब भी आज नहीं तो कल तो देश आजाद होना ही है। तो इसको बांटो, पहले ये तो साफ होना चाहिए भाई आपस में। तो ये बंगाल के फिर कुछ लोग आएंगे, आज भी कल भी परसों भी आएंगे, पूछेंगे आपने कहाँ कह दिया, उनको पढ़ो ना, थोड़ा पढ़ते रहो, हम लोग भी कुछ खोजते ही हैं उसी किताबों में। केवल वो क्या बोलते हैं, इंटरनेट से काम नहीं चलेगा, पुरानी किताबों में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो 1906 के बाद जो वो धर्म का भी मामला आएगा भी, और मैं वो भी आ रहा हूं धीरे धीरे। सर जब टाइम हो जाए बता दीजिएगा। तो क्योंकि जिस तरह से 1906, 1907, 1908 इसी समय नॉर्दर्न इंडिया में आदि धर्म मूवमेंट भी बड़ा पावरफुल था। एंड फॉर योर नॉलेज सेक,
there had been 56 conferences of Adi Dharma movement across the country. जो 1929 का 28-29 का जो इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है हर साल, हर 5वें साल, कुंभ मेले में भी उस समय वहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो रेफरेंसेस मिलते हैं आज भी, और है मेरे पास भी कुछ है, उस रेफरेंसेस में जो है कितने, कहां तेहरान के लोग थे उस समय, कितने महीने लगे होंगे सर तेहरान से इलाहाबाद आने में और इंडिया में पहुंचने में। उस समय हवाई जहाज तो नहीं था, जेट वाला जो, तो जो उस समय आए होंगे 2-3 महीने से चलो। इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेटेड पीपुल वर वेरी मच एसोसिएटेड विथ इंडियंस। वहां के नेटिव पीपुल यहां के नेटिव पीपुल से एसोसिएटेड रहे होंगे, तभी तो तेहरान से आए हैं, तभी तो कराची से आए हैं, तभी जो है लाहौर से आए हैं। इसमें नाम तक लिखा हुआ है कि कौन आदमी कहां से कैसे कैसे आया है। धर्म का भी हमारे पास लड़ाई नहीं थी। और ये आदि धर्म मूवमेंट, everybody has to study very carefully how Adi Dharma movement was a scientific religion and what was the principle of Adi Dharma. उसी से तमाम तरह की चीजें, चाहे स्वामी अछूतानंद हरिहर का नाम आता है, उसके पीछे जो है चाहे उसका कहने आदिवंश का डंका कह लीजिए, चाहे तमाम जो है वो क्या बोलते हैं रघुवंशी का जो है, या तमाम जितनी एक सीरीज है सब चल रही है। तो फिर हमारे पास कहां से एक धर्म का नाम आ गया कि एक और धर्म हमको चाहिए, जब ऑलरेडी था जिसमें बाबू मंगूराम थे। तो बाबू मंगूराम ने तो 8 असेंबली उस समय भी जिता करके जो है क्या बोलते हैं जनरल सीट पे लाए थे पंजाब से। कोई हम लोग पढ़ने को तैयार नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कहते हैं ना कि शुरू करिए डिबेट, एक बहुजन डिस्कोर्स शुरू करिए। अब बहुजन डिस्कोर्स इतना पावरफुल होने चाहिए कि कभी आज एक महोदय बोल रहे थे कि नहीं, और जो एक कॉमन फेनोमेना बन गई, गैर दलित भी दलितों की हिस्ट्री लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं, तो मुझे भी पता है कितने दिन के दलितों की बस्ती में दलितों के घर में रहे हैं, कितने दिन वो टूटी छप्पर से पानी टपक रहा हो, कितने दिन वो सोए हैं, जरा धो के दिखाएं तो। कितने दिन आदिवासियों के उस जंगल में रहे, जरा 2-4 दिन रहे को तो देखें। एक प्लानिंग कमीशन के एक सब कमेटी का मेंबर था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैडम वो स्टोरी है कि आदिवासी सब कंपोनेंट प्लान पे डिबेट हो रही है प्लानिंग कमीशन में, and none of the आदिवासी वर रिप्रेजेंटिंग देयर। कहीं से कोई एक मिश्रा जी बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं आदिवासियों का हम रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरे वाले दूसरे साहब बैठे, फिक्सिंग वाला मामला है। छत्तीसगढ़ में सब बहुत कुछ होता है, या झारखंड में होता होगा मैडम। वो लोग पीछे बैठे होते हैं और वो भीड़ बनाकर चलते रहते हैं, और यहां पर कहेंगे साहब हम ही रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने कहा कि इज देयर एनी वन फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी रिप्रेजेंटिंग टू देयर कम्युनिटी? कह रहे नहीं, हम ही तो हैं। तो इससे भी हमने कहा, हम कहते हैं कि जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, ये भी एक सोचते रहिए। और जितने, मैं एक चीज और भी बोलता हूं कि संगठन में वो स्टूडेंट्स का मामला, इसलिए उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर आज के समय या कभी भी जो होनी चाहिए, जो डिस्कोर्स होना चाहिए, दैट शुड बी लेड बाय द विक्टिम ऑफ द सोसाइटी। वो दूसरे लोग लड़ नहीं सकते उसके आंदोलन, क्योंकि उनके दर्द को, उनके तकलीफ को वो नहीं समझ सकते। जब आज अभी भी हम देख रहे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव, सभी अमृत पी रहे हैं ना, पियो अमृत। जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से होगा? सारे सेक्टर बेचते चले जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं। और वही पब्लिक सेक्टर जितना भी है, वो पहले जो बनाया गया था मिलियंस एंड मिलियंस रुपीस लगा करके, चाहे सेल हो, चाहे भेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हवाई अड्डा हो, सब कुछ हो, और वही जो कैसे घाटे में चल रहा है। और फिर प्राइवेट बेचा जाता, उसको कौड़ियों के भाव कैसे फायदा करने लगता है। ये सभी चीजों को डिस्कशन में आनी चाहिए, डिस्कोर्स में आनी चाहिए। बहुजन डिस्कोर्स में केवल हम कुछ नौकरियों का नहीं है सवाल है,
हम आ गए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका भी तो भविष्य होना चाहिए, उनके बारे में भी हम सोचें। तो डिस्कोर्स तो ये होना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी, अभी एक ठो बिहार में हो गया जनगणना तो परेशानी हो गई, बहुत दिक्कत है। 10% की पॉपुलेशन 90% रिसोर्सेज पे कब्जा, और 90% रिसोर्सेज पॉपुलेशन वाला वो जो है अभी भी ऐसे चल रहा। गरीबी का कितना बढ़ा है जरा आप लोगों को, हैव यू रेड? 77% पॉवर्टी रेशियो बढ़ा है। जरा देखते जाइए, कैलकुलेट करते जाइए। तो इसलिए बहुत ज्यादा कहने की अब कोई स्पेस तो मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ जो थोड़ा बहुत लिखा था वो टच ही कर गया हूं बहुत। 2 मिनट, चलिए चेयर की तरफ से वो हो गया है बस। हाँ, एक और मैं थोड़ा सा एक आध पॉइंट जोड़ दे रहा हूं कि कभी कुछ बोल दिया जाता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे? 1922 हो, इसमें 21-22 में सर ना। प्रिंस ऑफ वेल्स का एक बड़ा अच्छा है, और प्रिंस ऑफ वेल्स का सभी ने विरोध किया था। अब उसके रीजन तो वो जाने, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि स्वामी अछूतानंद और उनकी टीम ने दे हैव सबमिटेड अ मेमोरेंडम कंप्राइजिंग 17 पॉइंट्स, 17 पॉइंट थे उसमें। नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड वाज अ फर्स्ट, जमीन पर काम करने वालों को अधिकार दिया जाना चाहिए। और उसके बाद और क्या कहते हैं, जो बाद में चल करके कुछ लिखा गया है कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड तो है ही। कानपुर की मीटिंग में जब वो जाते हैं, जैसे एक दिन पहले पहुंच करके वो सर्वे करते थे कि भाई देख लें यहां कि लोकल इन्वायरमेंट कहां है, तो जो लेडीज होती थी वो कहती थी कि स्वामी जी आप जो है सबके बारे में तो कहते हैं लेकिन हमारे बारे में कुछ बोलते नहीं। महिलाएं हम तो अपने ही घर में सताए जाते अपने पुरुषों द्वारा। तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी अछूतानंद हरिहर पढ़िएगा आप लोग, जो 8 भाषाओं के ज्ञाता थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नॉर्थ इंडिया में लाने वाले साइमन कमीशन के सामने 1928 में लखनऊ में लाल बाग में डॉक्टर अंबेडकर को लाने वाले स्वामी अछूतानंद हरिहर थे। सब चीजें तो होनी चाहिए, डिबेट में डिस्कोर्स में आनी चाहिए। किसी को वो नहीं होना चाहिए कि एक ही से जिससे जो दिखता है वही बिकता है तो बेचते जाइए उसी को, उसके आगे बढ़िए। और तब जो है बहुजन डिस्कोर्स कंप्लीट होगा कि हाँ हम आंध्रा को भी पढ़ेंगे, हम तमिलनाडु को भी पढ़ेंगे, हम झारखंड को भी पढ़ेंगे, हम उत्तराखंड को भी पढ़ेंगे। अब तब जो होगा कल्चरल यूनिटी की बात होगी, जो कि कल्चर के बारे में बहुत ही ज्यादा वो जो है सीरियस डिबेट है, जो क्या नाम है बिरसा मुंडा साहब की, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो ये नहीं है कि केवल लोग कह रहे हैं अपनी ही कल्चर बचा लो, यहां अपनी कल्चर बचाई जा रही, मेरा सुरक्षित रहे तुम्हारा है। वो कहते हैं ना कि अंधेरे में चले थे हम अपना घर रोशन करने, हम अपना ही घर फूंक बैठे। वह पता नहीं किसका कैसे कैसे मुझे नहीं याद आ रहा, मैं तो शायर तो नहीं हूं। तो इसलिए मैं बार बार सभी यंग जनरेशन से वो कहता हूं, जितने लोग हैं कि एटलीस्ट किसी भी डिसिप्लिन में हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आधे घंटे 1 घंटे अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ो और कुछ सोचो, कुछ सीखो, कुछ समझो। 93 में जो है, 93 में मैं मान्यवर कांशीराम को लाया था जेएनयू में, और 93 में एट्रोसिटीज ऑन दलित्स एंड रोल ऑफ द पॉलिटिशियन पर बोलने के लिए मैडम, और मान्यवर कांशीराम दिन भर ऐसी एसएस ऑडिटोरियम हम लोग के साथ रहे थे। वो भी एक इतिहास है। तो कहते हैं ना कि जब आदमी अपने ये भुजाओं यानी हाथों पर, भुजाओं पर नियंत्रण पा ले तो यह जमीन का यह आसमान जीत सकता है। जरा कोशिश करके तो देखिए, आपसे बड़ी उम्मीद है, आप यंग जनरेशन है। और मैं तो कभी कभी ये देख रहा हूं कि यंग जनरेशन जितना सफर कर रहा है उतना हम लोग नहीं थे, हम लोग तो बल्कि निकल चुके हैं। उनके ऊपर चैलेंज जाता है कि अब उनको जो बहुजन समाज है, जो बहुजन डिस्कोर्स है, उनको कहना स्टडी एंड स्ट्रगल उनका नारा होना चाहिए। जो और जो चलाते रहते हैं उनसे थोड़ा सा आपो भी घटिए। जैसे आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो रियल स्ट्रगल यही होगी, रियल ट्रिब्यूट क्या नाम है बिरसा मुंडा को तभी होगा कि स्टडी एंड स्ट्रगल। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और
बार बार वो मैं चेयर को नहीं परेशान नहीं करना चाहता हूँ अपनी बात लंबी करके। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।